انشاءاللہ تعالی ہم 10 علمی پوائنٹس ڈسکس کریں گے. علمی پوائنٹ نمبر 1. سب سے پہلے تو میں مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کروں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے یہاں آنے سے پہلے بھی اور یہاں جانے کے بعد بھی اس اعتبار سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، اور انہوں نے ببانگ دول یہ چیز ایڈمٹ کی ہے مختلف لوگوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ 26 نومبر 2023 کے حوالے سے ہماری انجینئر صاحب کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا ہوا تھا، ہم خود سے گئے تھے. کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جیلم کے آؤ ہم مناظرہ کریں گے؟ نہیں، مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے. تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ خود سے چلے گئے، گاڑی تیار کر لی، تو کیا یہ اخلاقی اقدار کے بات منافی نہیں ہے؟ نہیں، ان کا آلریڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے 24 جو ہے سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں. وزیر اعظم سے لے کر ایک عام ادنا مسلمان تک کوئی بھی شخص 9 بجے سے پہلے میری اکیڈمی میں آ سکتا ہے. اب یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے جو انہوں نے کی ہے اور اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے. البتہ انہوں نے پلی یہ لی کہ چونکہ انجینئر صاحب کی اناؤنسمنٹ ہے کہ سنڈے کو کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم اس اعتبار سے گئے تھے. تو بھئی سنڈے کو کوئی بھی آ سکتا ہے، مناظرے کے لیے نہیں، نہ کوئی دنگا فساد کرنے کے لیے، بلکہ آ کے پروگرام کو وہ اٹینڈ کر سکتا ہے. وہ اس کے بعد بھی ہے، وہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے. بالکل. سب سے پہلے اس حوالے سے میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، تاکہ عوام الناس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ انہیں کوئی ٹائم دے کے اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی علمی نشست نہیں ہوئی. علمی پوائنٹ نمبر 2. انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ جھوٹ بولا کہ ہمارے کیمرے چھیننے کی کوشش کی گئی، دھکے دے کر نکالنے کی کوشش کی گئی. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک 9 بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویلکم. ہم 9 سے پہلے آئے، لیکن ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے، بند کر دیے، نہیں ویڈیو بنانے دی. تو ہم نے احتجاج کی. بالکل کسی کی جرت ہی نہیں کہ یہاں کوئی اس طرح کی حرکت کرے. یہاں کا ڈسپلن جو لوگ دیکھ کے گئے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی کوئی غیر اخلاقی حرکت کرے. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ ویڈیوز میں خود دیکھ لیں. ہمارے جو اکیڈمی کے امیر صاحب ہیں ندیم ریاض بھائی، انہوں نے باقاعدہ عمران بھائی کو بھیجا نیچے، ٹھیک ہے، کسی عام بندے کو نہیں بھیجا. عمران بھائی نے ماشاءاللہ چائنا سے ایم فل کی ہوئی ہے میتھمیٹکس کے اندر، سب سے پڑھا لکھا بندہ ہم نے جو ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کر سکتا ہے وہ نیچے انہوں نے بھیجا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر یہ آئے تو ہم نے ان کو احترام سے اوپر لے کے آنا ہے، بے احترامی نہیں کرنی. انہوں نے جا کے ان کی دست بوسی کی ہے. پہلے ان کو میں نے سختی سے کہا تھا کہ آپ نے ان کے ہاتھ چومنے جا کے اور رسپیکٹ دینی ہے. ظاہر ہے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے دفاع کے حوالے سے جو بھی کام کرتا ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک آپ سمجھ لیں میری کمزوری ہے. اس کے بعد وہ ویڈیو ہمارے لوگوں نے تو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی، جو انہوں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی اس میں سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کلپ کاٹ کے اپلوڈ کی. میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری بنائی ہوئی ویڈیو ہے، جس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اوپر تشریف لائیں، میں انتظامیہ میں ہوں، ہم آپ کو بٹھانے کے پابند ہیں، ناشتہ چائے سب کچھ یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی یہ معاملہ کہ کوئی انہوں نے آپ سے علمی ڈسکشن کرنی ہے نہیں، یہ آپ کا اور انجینئر صاحب کا معاملہ ہے. اگر آپ نے ان سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو یقیناً وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے. اب ان کو تو پتا تھا کہ کمٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے، اور پھر علماء والا ایک جو تھوڑا بہت سمجھ لیں تکبر ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا ہم کوئی ان کو یہاں سننے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے ہیں یا دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو بات کرنے آئے. تو بھائی ادھر لوگ بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہوتے، اپنے سوالات پرچیوں پر لکھ کے دیتے ہیں، وہ آپ بھی لکھ کے دے دیں. ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں یا ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے، میں انتظامیہ ہوں، میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاز ہوں، تسلی سے آپ اندر بٹھا دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کر رہے ہیں. مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے، اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں، کتابیں ہوگا اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیمرے آپ کے لے آئیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ایشو نہیں ہے سر. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کیمرے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ کیمرے لے کے سیڑھیوں میں نعرے مارتے ہوئے چڑھیں گے اور بعد میں یہ پروپیگنڈا کریں گے، کیونکہ ہم خود بریلوی رہے ہیں. ہاں جی، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ بریلویوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. اب تو ویسے پوری قوم کو دھرنوں کی وجہ سے پتہ چل چکا ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو احترام سے لے کے جائیں گے. ہمارے میر صاحب نے باہر باقاعدہ کرسی لگائی ہوئی تھی کہ ہم انہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بھی خطرہ تھا یہاں سے کوئی موب میں سے اٹھ کے کوئی داڑھی نہ کھینچ لے ان کی، کیونکہ پاگل لوگ تو ہر جگہ موجود ہے نا.
मतलब उनकी तरफ से भी आगे कोई हरकत कर सकता था ना, खतरा तो था कि कोई बेहतरामी वाला मामला ना हो। हम तो यानी इस एतबार से पूरी तैयारी किए हुए थे। और फिर इन्होंने उसमें कहा है कि अगर आपकी कमिटमेंट हो गई तो फिर आपके कैमरे भी आप अंदर लेके जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखें, यही लोग यहां आने से पहले कह रहे थे कि अगर ये चाहेंगे तो हम कैमरे लेके जाएंगे, अदरवाइज कैमरे तो शाही कोई नहीं कि ना इधर से वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। और मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि हमें पता है कि वो मेहमान नवाज है, तो हम चले चाय समोसा ही खाएंगे। आपने ऐलान किया है कि 26 नवंबर को आपके दरवाजे जो है ना वो खुले रहेंगे। मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाएं तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहां पकोड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम करेंगे। तो जब चाय समोसे के लिए आपको बुला रहे थे, आप क्यों नहीं आए ऊपर? वो इसलिए आए नहीं थे, वो बरेलवी मकतब में चुके अपनी स्पोर्ट गंवा चुके में, तो उसको आप गेन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये भी मैं एक तरीका अडॉप्ट करूं, लेकिन वो गलत जगह आ गए। पढ़े लिखे बंदे के साथ वास्ता पड़ा है भाई, हमने तो हर चीज की वर्किंग पहले से की हुई होती है। तो ये झूठ भी इनका बेनकाब हो गया। इल्मी पॉइंट नंबर 3, वो कहते हैं कि जी हम इसलिए गए थे जबरदस्ती मुनाजरे के लिए कि इंजीनियर जो है वो हमारे बुजुर्गों को ललकारता है और हमें बार बार इस एतबार से टीज करता है कि आके मेरे साथ मुनाजरा करो। बिल्कुल झूठ है। आधी मेरी वीडियो काटते हैं। जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है, लेकिन साथ लिखा हुआ है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। अब पूरे जुमले में कितना फर्क है। मैंने इनको ललकारा नहीं, ये जब हमारे दलाइल के आगे फेल हो गए और बार बार ये कहते हैं कि अगर ये सच्चा है तो हमारे सामने क्यों नहीं बैठता, और हमारे बाद स्टूडेंट्स को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी सामने बैठ जाएं। तो मैंने इसको रिबटल किया था कि अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर तैयार हूं, लेकिन हर बंदे के साथ बैठने के लिए नहीं। तुम खुद ही कहते हो कि इसने एक फिरका लॉन्च किया है तुम्हारे जोम में, तो फिर इस फिरके का बड़ा तुम्हारे जोम में मैं हुआ, तो मुझे अपने फिरके के बड़े के साथ बिठा दो। बरेलियों ने बिठाना है तो मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के साथ बिठा दो, देवबंद ने बिठाना है तकी उस्मानी साहब के साथ बिठा दो, अहले हदीस ने बिठाना है साजिद मीर साहब के साथ। और ये इनकी डिमांड के ऊपर देखें, हमारे साहबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर तितर बितर हो गया, सिर्फ एक तकब्बुर का जुमला निकल गया जो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में भी नकल किया कि तुम्हें तुम्हारी कसरत ने ताज्जुब में डाल दिया, फिर भागने की जगह नहीं मिली। सिर्फ 80 बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुहकम यकीन था कि अल्लाह मेरे साथ है। आप अकेले आगे बढ़े, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो इनको भी चाहिए ना ये आगे बढ़े। मैं हूं मुफ्ती मुनीर बरेलवियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। आ इंजीनियर मेरे साथ बात कर, मैं कुर्सी पे उनको बिठाऊंगा, नीचे बैठ के उनकी बात सुनूंगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और भी बड़े, अगर ये नहीं कर सकते, ये कहते हैं जी ये लिस्से लोगों के साथ बैठता है, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुफ्ती मुनीब साहब ढीले और लिस्से बंदे हैं? तकी उस्मानी साहब वो मैं सबसे बड़े के साथ बैठ रहा हूं भाई, नहीं उन्हें मुनाजरे का फन नहीं आता, तो मैंने इसको भी आसान कर दिया था। ठीक है, वो अपने लिस्सों और ढीलों को जिनको तुमने अपना हेड बनाया हुआ है उनको कुर्सी पे बिठाओ, साथ बैठ जाओ, और वो ये कहें कि मैं तो चुके ढीला डाला हूं अगरचे मैं इनका बड़ा हूं, लेकिन इसकी जुबान लंबी है तो मेरी तरफ से ये बात करेगा, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार। ठीक है, इसको भी मैंने मजीद आसान कर दिया कि वो बड़े ढीले को यहां आने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो बना दे। बाद लोग कह रहे हैं कि जी मैंने पहले बात की थी कि लिख के दे दे, मैंने पहले दिन से वीडियो की बात की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा स्टूडेंट की अदालत में, वो आप देख ले, उसमें मैंने वीडियो, मुझे पता है कि लिखी हुई चीज तो कोई भी बना के ले आएगा, वीडियो से नहीं कोई मुकर सकता, और वीडियो एआई में नहीं बनी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ना बनी हो। तो मैंने कहा था वो वहीं रहे, एक वीडियो बना दे कि ये बंदा मेरा रैप है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और ये भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। उसकी वजह यह है कि ये तो लाखों में मौलवी हैं, मैं किस किस से बात करूंगा, मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए तो ये एंड नहीं होगा। तो मुझे बताएं, क्या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उस दिन मुफ्ती मुनीब साहब से वीडियो बनवा के लाए थे यहां पे कि जी ये ले जी वीडियो आ गई इंजीनियर साहब? मैं तो अपना प्रोग्राम ही खत्म करके, फिर वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ, अगर ये वीडियो आ जाती तो मैं तो प्रोग्राम तो खत्म कर देना था। और मैंने कहा था लो जी मसला, मतलब इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ये है, मैं ऐसे करता। और ये अभी भी मेरी ऑफर क़यामत तक के लिए है, खा
मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए वीडियो बना दें या डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के लिए वो वीडियो बना दें या किसी भी बंदे के लिए, मैं रेडी हूं। लेकिन उसके बगैर अगर आप आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आप गलत बयानी कर रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 4, वो कहते हैं हम इसलिए आए कि इसने हमें वीडियो में ना चैलेंज किया था। भाई वीडियो में ये चैलेंज किया था कि तुम फौज लेके मेरे घर आ जाओ। क्या मीडिया पे जब बैठ के एक सहाफी कोई फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं और दूसरे सहाफी को चैलेंज करते हैं कि भाई तुम इसका जवाब दो, तो वो सहाफी जो है वो सैकड़ों बंदे इकट्ठे करके उस सहाफी के घर पहुंच जाता है या अगले प्रोग्राम में अपनी वीडियो में जवाब देता है? दुनिया में ये कहां होता है? तो मैंने तो इल्मी चैलेंज की बात की थी, मुनाजरे का चैलेंज तो नहीं किया। झूठ बोलते हो। और तुम्हारे मसलक को जो सबसे बड़ा खतरा है ना इन बाजारात से है। जड़े बढ़ो ना, किसी मजार पे जाके ढोल ढमक्का बंद करवा के बताओ, ये पब्लिक ले जाओ ना मजार के ऊपर अगर तुम मुखलिस हो तो। जी हमें बदनाम कर रहे हैं, अगले जूतियां मारेंगे इनको। और देखो इसके ऊपर कितनी बड़ी अब आजमाइश आ गई है। वो 26 दिसंबर की डेट डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी ने अनाउंस कर दी है। इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है वैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएं, लेकर आए। आप यहां पर 5000 भी लाते हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर कोई टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं, एक दफा आ जाएं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया, जिसे बड़ा शौक था मुनाजरे करवाने का, अब करवाना। और उन्होंने तो कहा 1000 बंदे लेके आ जाओ, खाना भी खिलाएंगे, और अगर नहीं आ सकते हम तुम्हारे घर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने उस वादे में सच्चे हैं तो इन्हें फेस करना चाहिए ना, जो बुला बुला के कह रहे हैं। अगर ये फेस ना करे तो आप समझ लें यहां पे ड्रामा लगाने आया था। और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये कभी भी फेस नहीं करेगा, ना उधर जाके ना अपने पास बुला के। इसे पता है कि ये उस मामले में बरेलवियत के एतबार से झूठा है। बनु उमैया का जो मुकदमा है ना बरेलवियत का, वो वही है जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब पेश कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत का नहीं, बरेलवियत का। इसलिए वो कभी भी उसको फेस नहीं कर सकेगा। ये भी मेरी करामत होगी इंशाअल्लाह ताला। अब तो मसला खत्म हो गया ना, चलो जी मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि मैंने उसका आपको समझा दिया कि ये कुछ नहीं हुआ। ये पहुंचे वहां पे, उन्होंने डेट ना, उनको तो बहाना चाहिए था। अब मेजॉरिटी में तो वो है इलियास कादरी साहब, उनकी पुष्ट के ऊपर है। अब पता चलेगा भी क्या बनता है, कैसे ये प्रोग्राम होता है। कुछ भी नहीं होना। इल्मी पॉइंट नंबर 5, वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने पुलिस बुलवा ली और हमें यहां से निकालने की कोशिश की, इदारे इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, और वो जो एक नैरेटिव इनका होता है खामखा की बात। मेरे भाई पुलिस तो ऑलरेडी यहां मौजूद होती है, और तुम्हारी मस्जिद में दूसरी अजान के वक्त लोग दाखिल होते हैं अक्सर मसाजिद के अंदर। कई जामिया मसाजिद में तो 25-30 से ज्यादा नमाजी भी नहीं होते हमारे जेलम के अंदर। उन मसाजिद के बाहर भी 2 पुलिस वाले बैठे हुए होते हैं ड्यूटी के ऊपर। कम से कम 65 मसाजिद जेलम के अंदर मौजूद है। 65 को आप जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, 130 पुलिस वाले जुम्मे वाले दिन अंगेज होते हैं इनकी जामिया मसाजिद के बाहर, उन मसाजिद के जिनमें लोग दूसरी अजान के वक्त आते हैं और 2 फर्ज पढ़ के वापस चले जाते हैं। तो जहां सुबह से लोग मेरे मिंबर पे चढ़ने से पहले सैकड़ों की तादाद में मौजूद है, वहां पे 25-30 बंदे पुलिस वाले नहीं आ सकते। और वो दिन भी संडे का है, जुम्मे का भी दिन नहीं है कि आपके के लोग अंगेज हैं। उन 130 में से अगर सिर्फ 30 इधर आ जाए और बाकी 100 अपनी ड्यूटी करते रहे दूसरी, तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है? ये बात ठीक है कि सिक्योरिटी इदारे भी, पुलिस वाले भी, एजेंसीज भी, वो मुसलसल हमारे अमीर साहब से राब्ते में होती हैं। अब ये इस इंसिडेंट से पहले 1 हफ्ते पहले उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे, डीपीओ ने भी, एजेंसीज के लोगों ने भी, कि हाँ जी ये तमाशा लगने जा रहा है, तो आप लोगों ने कोई बुलाया हुआ है? तो हमारे मीर साहब ने उनको बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने बुलाया होता तो कोई वीडियो मौजूद होती। वो तो खुद भी कह रहे हैं कि ये हम खुद से ये सारे मामलात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम इनको अपने तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन मैंने अमीर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आपने उनको ये कहना है कि टैकल का ये मतलब नहीं है कि उनको आप यहां से धक्के मार के निकाल दें, ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम संडे वाले दिन किसी को यहां आने से नहीं रोक सकते, मुनाजरे के लिए नहीं, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और उसी की वजह से मैंने अमीर साहब से रिक्वेस्ट की थी और अमीर साहब ने इमरान भाई को नीचे भेजा था। हम कोई चाय पीने थोड़ी आए या हम कोई यहाँ उनकी इजाजत करने थोड़ी आए। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजाद हूँ, तसल्ली से आप अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, होगा उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। तो देखें हम बड़ी प्लानिंग के साथ मामलात को लेकर चल रहे होते हैं, वरना अगर पुलिस वालों को हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये हमारी एकेडमी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते इस प्रेमिसेस में,
करीब करीब भी नहीं फटक सकते, तो ये हमारा राइट था। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के कानून में जुर्म है कि अगर कोई शख्स आपसे मिलना ना चाहे और आप जबरदस्ती उसके दरवाजे पे चले जाएं, मुआव लेके नहीं, अकेले भी नहीं जा सकते, ये हरासमेंट में आता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने कहा आए, अगर आपका पैचअप हो गया तो कैमरे भी आपके आ जाएंगे, आए आपको नाश्ता भी करवाते हैं, आज 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 आज। लेकिन वो तो किसी और चक्कर में आए हुए थे। और देखें, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 6, अब मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो बनवाए बगैर बरेलवियों का नुमाइंदा बन के आ जाए, तो क्या वो मेरी दावत के ऊपर आ रहा है? मैंने तो पहले दिन से इनके कहने के ऊपर यह चीज रखी थी ताकि इस इशू को एड्रेस किया जाए। इसके बाद जाके ये कहना प्रेस क्लब के अंदर के इन्होंने हमें धक्के दिए और फलां किया, हमारे कैमरे भी छीन लिए, हालांकि वो वीडियो आपके सामने है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और अपनी हालत ये है लोगों की, इन्होंने मुफ्ती मुनीब से क्या वीडियो बनवानी है? क्यों? मेजॉरिटी पोर्शन तो डॉक्टर अशरफ जलाली और इलियास कादरी पार्टी के साथ है। मुफ्ती मुनीब साहब कैसे रिस्क ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदे को लॉन्च कर दें? अगर उन्होंने कभी कुछ करना भी हुआ ना मेरा इतना उकसाने पर, तो वो इसको कभी भी नॉमिनेट नहीं करेंगे, इस बंदे को। इनकी हालत यह है कि जेलम की किसी भी नुमाइंदा बरेलवियों की मस्जिद में इस शख्स को कोई तकरीब ही ना करने दे। यही वजह ये प्रेस क्लब गया है। हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे मशहूरी के लिए गया, नहीं नहीं, मशहूरी के लिए वहां नहीं गया, इसको मस्जिद में घुसना ही नहीं देते, इसको जिंदगी राफजी कहते हैं। सारे बरेलवी उलमा की वीडियोस आप देख लें, वो इस पूरे ड्रामे से पहले भी कह रहे थे ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो राफजी है। सारे बड़े बड़े उलमा इनके। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। और रही बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये अहले सुन्नत व जमात के जो मुअतबर और मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनके नजदीक ये कोई काबिल एतबार शख्सियत नहीं है। और ना ही, ये मेरी बात याद रख ली जाए, और ना ही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की तरफ से इस मुनाजरे के नुमाइंदा हैं। ये हमारे सुन्नियों के तर्जमान और नुमाइंदा नहीं है, मैं वादे लफ्जों में कह रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं, ये सुन्नियों के तर्जमान नहीं है, ये रावजियों के मोहरे हैं, जब चाहते हैं वो इनको इस्तेमाल करते। जदों पिंडी दियां लूमड़ियां, पिंडी दे भेड़िए नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, पिंडी दे लपड़ लगड़ बग्गे ओ जिस वेले पौंके ना सियाबा कराम नो ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान ते, कहने लगे आ सियाबा दे दुश्मनों धर धर। उसको भी जरा शैतान को पहचान ले आप, जो उनको ले लेकर यूट्यूब चैनल पर बैठकर यानी जबरदस्ती गर्द उड़ाने के लिए उस मलऊन को पहचानिए आप। उसका नाम लेना भी हम एक गोया के ये समझते हैं कि जनाब एक इल्मी मजाक है और ये हमारे वकार के भी खिलाफ है। लेकिन अमीन शहीदी का जो इंटरव्यू ले रहा था, उस मलऊन को भी जरा जहन में रखिए आप, ये हर उस इशू को छेड़ता है जिससे फिरकावारी फैले। ये सुन्नी तुम्हारा सुन्नी नहीं है, ये याद रखना। तो अगर ये कुछ करने में कामयाब भी होते हैं ना, तब भी इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना था। तो जो कह रहा है ये सेमीफाइनल है, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये उस फिरके का नुमाइंदा ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने उलमा कह रहे हैं। और दूसरी तरफ यही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से जब एक एंकर ने पूछा कि हजरत वो एक गाली राफजी है हसन अल्लाह यारी, वो आपको मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है, तो पता क्या कहा इसने? इसने कहा कि उसको तो शिया खुद नहीं मानते हैं, शिया उलमा का तो ऐलान बरात है, वो कोई नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। हसन अल्लाह यारी साहब के हवाले से क्या राय है आपकी? कोई काबिल आदमी है? बुनियादी तौर पर तो उनको खुद शिया कम्युनिटी ऑन नहीं करती है कि जी वो उनका नुमाइंदा है। जब वो किसी जमात या मसलक का नुमाइंदा नहीं है तो हम उसको किसी मसलक के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मेरे वाले कानून मुझे कहते हैं इसने अपने कानून खुद बनाए हुए हैं। भाई आपसे तो बहुत ज्यादा उसकी व्यूअरशिप है। इसकी व्यूअरशिप जो है ना सैकड़ों में है, ये अभी को ड्रामाबाजी की वजह से हजारों में गई है। आप पुरानी वीडियोस देखें, 1000 पे भी वीडियोस की कोई कोई पहुंचती थी। और जिसको ये राफजी कह के कह रहे मैं बात नहीं करूंगा कि वो शिया का नुमाइंदा नहीं है, उसकी व्यूअरशिप तो तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। और अब तुम्हें यह याद आ गया कि वो नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारे बड़े जिंदगी और राफजी समझते हैं, तो तुम कहां से नुमाइंदा शख्सियत हो? देखा लॉजिकली किस तरीके से काबू में आते हैं, एंटी वैनम फकी इल्जामी जवाब के तौर पर। इसलिए मैं हर चीज की इंजीनियरिंग करता हूं, आम बंदे को समझ आ जाती है कि ये मसला क्या हो रहा है। इल्मी पॉइंट नंबर 7, ये बहुत ज्यादा झूठ इनकी तरफ से भी फैलाया गया और दूसरे लोगों की तरफ से भी कि जी इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को काफिर कहते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाई, मैंने तो अपने सख्त मुखालफीन को भी कभी काफिर नहीं कहा। मेरे अलावा प्लेनेट अर्थ पे कोई एक बंदा मुझे नॉन बरेलवी दिखाएं डोमिनेंट, जो अहमद बरेलवी साहब को आला हजरत कहता हूं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहिब कहता हूं मैं, रिस्पेक्टेबल लफ्ज है नबी इस्लाम के लिए। वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये इतना रिस्पेक्टेबल वर्ड है। ये कहते हैं बुजुर्गों को काफिर कहता है, बस एवं झूठा प्रोपेगेंडा करना है।
हां, मैं इबारात को कुफरिया कहता हूं, या फिर कहता हूं कि जो इन इबारतों को सही मानेंगे उनके ऊपर कुफर लौटेगा। रहा बुजुर्गों का मामला, तो मर के अल्लाह के पास जा चुके हैं, हमें नहीं पता, हमारे सामने मौजूद नहीं है। हो सकता है कि उनकी तरफ गलत बात मंसूब हो गई हो, या उन्होंने मरने से पहले अपने इस कुफर से तौबा कर ली हो। हां, हमारे सामने कोई करेगा उस पर हम फतवा लगाएंगे। और ये सेम बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वीडियो में कही हुई है कि इंजीनियर साहब जो बुजुर्गों की कुफरियात हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो ये बुजुर्ग तो मर चुके हैं। अगर ये बुजुर्ग जिंदा होते, हम इनसे पूछते कि क्या तुमने ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया, और अगर वो अपनी बात पे डटे रहते तो हम इन पे कुफर का फतवा देते। ये खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि हम भी इन्हें काफिर कहते हैं। तो मुफ्ती साहब, आपने तो हमारा मुकदमा मान लिया। अब हमारे पास होते, हमारे जमाने में वो होते, तो हम उनसे जाकर पूछते जी आपने ये लिखा है सही। अगर वो कहते लिखे, फिर हम कहते ये गलत लिखे, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। हम भी यही कह रहे हैं, हम बुजुर्गों को नहीं, उनकी इबारात को कह रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 8, अब ये भागने का रास्ता। और जी बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। अच्छा जी, ये कब पता चला आपको किताबें बदली हैं? कल तक तो तुम लोग मुनाजरे कर रहे थे, और वो छोटू बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ रहा था चिश्ती रसूलुल्लाह के दफा के ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। आज छोटू कहते हैं किताबें बदल गई हैं। ये कौन सा मुजद्दिद आया जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हारी किताबें बदल गई हैं? और दूसरी बात, ये किताबें प्रिंट कौन कर रहा है? आज भी प्रिंट हो रही हैं। और तीसरी बात, तुम लोग आके कैपिटल सिटी में धरने देते हो, लाहौर से निकल के, लाहौर से ये चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी सारी गुस्ताखाना किताबें प्रिंट हो रही हैं। उन मकतबों के बाहर क्यों नहीं जाके धरना देके तो इन किताबों की प्रिंटिंग बंद करवाते? इसलिए कि उनसे चंदे लेके खा रहे हैं। अगर तुम मुखलिस होते ना, तो खत्म नबूवत पे काम करते, एंटी कादियानी ना सिर्फ करते। खत्म नबूवत पे काम यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत कहेंगे, और चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को भी हम गलत कहेंगे। हां, यह नहीं है कि साडा कुत्ता कुत्ता दे तोड़ा कुत्ता टोमी। हां, ऐसा नहीं होगा जी। किताबें बदल गई हैं। अच्छा, कौन सा मुजद्दिद है जिसने बताया किताबें बदल गई हैं? तुम लोग तो मुनाजरे कर रहे थे, और वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, कोई गन पॉइंट पे मुनाजरे नहीं हुए। तो सिर्फ भागने का रास्ता है। इनको पता है कि काम डल गया हमारे साथ। हमने जो हथियार रखा हुआ था अपने मुखालफीन के लिए, वो हमारे ऊपर ही चल गया। एक छोटी सी पुड़िया हुसामुल हरमैन लिख के 1905 में बरेलवियों ने सारे फिरकों के ऊपर हुकूमत की है, और हम उसी आला हजरत के नामुकम्मल मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने मुखालफीन को गुस्ताख डिक्लेयर किया था, हमने उनके बुजुर्गों की भी गुस्ताखियां दिखा दी। बाकी बुजुर्गों का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। हमें नहीं पता कि वो तौबा करके मरे हैं, नहीं करके मरे, उन्होंने लिखा था, नहीं लिखा था। प्रिंट तुम कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी है कि उन्होंने लिखा है। द लॉ सम ऑफ योर ओन। अच्छा, इनका